بھارتی محاصرے کا 1 سال مکمل۔ 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کے خلاف کراچی تا خیبر پاکستانی قوم ہم آواز۔ نہتے کشمیریوں کے ساتھ مثالی یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال۔ شہر شہر قریہ قریہ ریلیاں اور جلوس، سائرن بجائے گئے۔ پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی، ٹریفک بھی رک گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں نریندر موڈی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ دنیا کی نظروں میں اب کشمیر آ گیا۔ جو کشمیر کا نوجوان ہے اب مضبوط ہو گئے ہیں، موت سے خوف چلا گیا۔ اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ 5 اگست 2019 کا اقدام بہت بڑی غلطی۔ مودی پھنس گیا۔ اب ایک ہی نتیجہ نکلے گا، کشمیر کو آزادی ملے گی۔ مظالم سہتے کشمیری مضبوط ہو چکے، موت کا خوف بھی نہیں رہا۔ مسئلہ دنیا کی نظروں میں آ گیا۔ پاکستان اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان دینے کا اعلان۔ I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ آزادی کی جدوجہد میں پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ۔ نہتے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرائے۔ صدر مملکت کا ایوان بالا سے خطاب۔ مودی سب کے لیے خطرہ، اس کے عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کا غیر قانونی محاصرہ ختم کرائے۔ سیاسی قیادت کا LOC کا دورہ محصور کشمیریوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ یوم استحصال کشمیر۔ وزیر اعظم کی مظفر آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں شرکت۔ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ساتھ۔ عمران خان نے کشمیریوں کی یاد میں جموں اینڈ کشمیر مونومنٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ سال کی آپ کی پالیسی کا نفاذ ہو گیا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئیے مظفر آباد میں کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو کس قسم کا استقبال ملتا ہے۔ کشمیری ریفرینڈم جب ہوگا، عوام کا ریفرینڈم آج ہی ہو جائے گا۔ میرا چیلنج ہے، قبول کرو اگر ہمت ہے، قبول کرو اگر ہمت نہیں ہے تو نظر ثانی کرو۔ دنیا مقبوضہ وادی میں انسانیت سوز مظالم سے بے خبر نہیں۔ بھارت کا مکروہ چہرہ ضرور بے نقاب ہوگا۔ اگر ہمت ہے تو عوامی ریفرینڈم کراؤ، ورنہ غیر قانونی اقدام پر نظر ثانی کرو۔ شاہ محمود قریشی کا مودی کو چیلنج۔ اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر یکجہتی کشمیر ریلی۔ صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزراء کی شرکت۔ مودی سرکار کو کشمیریوں کی شناخت چھیننے نہیں دیں گے، شرکاء پرعزم۔ بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ بھارتی مظالم کا جواں مردی سے مقابلہ کرنے پر کشمیریوں کو سلام۔ ہمیں نعروں کے بجائے مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا ہوگی، وزیر داخلہ اعجاز شاہ۔ لاہور میں گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ریلی۔ شرکاء کی بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ آزادی کے حصول تک کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں چودھری سرور۔ بھارت کا متکبرانہ رویہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، عثمان بزدار۔ خطے کا ہٹلر مودی کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب جنت نظیر وادی میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ فیاض الحسن چوہان۔ بے گناہ کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا، ڈاکٹر یاسمین راشد۔
5 अगस्त अक़वाम मुत्तहिदा की साख मजरूह होने का दिन। कश्मीरियों को उनका जमहूरी, कानूनी और अखलाकी हक न देना UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मामले पर OIC का आला सतह का इजलास बुलाया जाए। शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की भी रैली। पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील सफाई। सियासी जमातें मिलकर आवाज बुलंद करें। ख्वाजा साद रफीक और दीगर का खिताब। भारतीय मजालिम की मजम्मत। यौम इस्तेहसाल पर वजीर आला सिंध की जेर क़यादत कश्मीर यकजहती रैली। 365 दिन का तवील तरीन कर्फ्यू भी कश्मीरियों को झुका नहीं सका। मोदी के दामन में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। आज़ादी की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मुराद अली शाह का खिताब। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में रैली। कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। शुरका की भारत के खिलाफ नारेबाजी। आलमी इदारे कश्मीरी आवाम को उनकी मर्जी से जीने का हक दिलवाएं। महमूद खान। क्वेटा, डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां। भारत ने हत्ते कश्मीरी अवाम पर जुल्म और जबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मजलूमों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रहेगी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल। जो जुल्म सितम हो रहा है इसकी हम भरपूर निजामत करते हैं और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम मिलकर कश्मीर को इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सब पाकिस्तानियों को इकट्ठे होके एक आवाज़ हो इसके अगेंस्ट कंप्लीटली मजम्मत करनी चाहिए। भारत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। जात छोड़ दे मेरी वादी। बच्चों, बूढ़ों और जवानों की जबान पर एक ही नगमा। कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी। ख़वातीन भी पुरअज़्म। हांगकांग में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली। डबल डेकर बस की छत पर लहराते परचम तवज्जो के मरकज। तराने भी बजते रहे। बार्सिलोना में भारतीय कौंसल खाने के बाहर मुजाहिरा। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। और इंसानी हुकूक कमीशन को मकबूजा वादी तक रसाई देने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में खौफनाक सूरत हाल। अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम। तहकीकात के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा। चमकेगा कश्मीर तेरे कोहसारों में। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, वजारत खारजा ने जाहिद हफीज चौधरी को तर्जुमान दफ्तर खारजा मुकर्रर कर दिया है। आयशा फारूकी की जगह हफीज चौधरी को तर्जुमान दफ्तर खारजा मुकर्रर किया गया है। जाहिद हफीज चौधरी DG उमूर जनूबी एशिया और सार्क तैनात थे। नए तर्जुमान दफ्तर खारजा की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। वजारत खारजा में तब्दीली हुई है और वजारत खारजा के तर्जुमान के अब तब्दीली के तौर पर देखा गया है। आयशा फारूकी के पास पहले जिम्मेदारी थी जो अब हफीज चौधरी को दी गई है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच से। अदील, क्या वजह बनी इस तब्दीली की? क्या आयशा फारूकी को कोई नई जिम्मेदारी दी जा रही है? जी, आयशा फारूकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स पर जा रही हैं। वो ग्रेड 20 की ऑफिसर हैं। चूंकि प्रमोशन के लिए कोर्स पर जाना जरूरी है, तो ऐसे में DG साउथ एशिया व सार्क जाहिद हफीज चौधरी को जो है ये इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये बड़ी अहम तैनाती है क्योंकि इससे कबल जो है डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो कि DG साउथ एशिया व सार्क थे, तो वो भी रह चुके हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा। चूंकि दफ्तर खारजा में DG साउथ एशिया व सार्क बहुत अहमियत के हामिल ये पोस्ट होती है। 26 साल का इनका सफारतकारी का तजर्बा है पाकिस्तानी मिशंस में और यहाँ पर हेडक्वार्टर में। तो ये वाशिंगटन DC में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में भी रह चुके हैं।
हाई कमीशन जो पाकिस्तान का है लंदन में, वहां भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रह चुके हैं। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल अफगानिस्तान, ईरान और टर्की रह चुके हैं। जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो भी रह चुके हैं। तो जाहिद हफीज चौधरी इस वक्त डीजी साउथ एशिया व सार्क के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी पोस्ट इनकी साथ ही चलेगी। और जाहिद हफीज चौधरी जो है इन्होंने इंटरनेशनल लॉ में मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल कर चुकी है। उनका दूसरा मास्टर जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो डीजी साउथ एशिया व सार्क चूंकि पाकिस्तान डीजी साउथ एशिया को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। अदील वड़ाइच, आपका शुक्रिया। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने रेलवे ML1 मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की लागत आएगी। ML1 पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर पर मुहित है। ये वही मंसूबा है जिसके मुतालिक कई बार शेख रशीद बात कर चुके हैं और उन्होंने बताया कि जो 1 लाख मुलाजमतें होंगी सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार के बाद, वो यही मंसूबा है जिसकी इक्तसादी राब्ता कमेटी ने आज बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इस खबर से मुतालिक मजीद तफसीलात ले लेंगे। हेड ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट जुल्फिकार अली महतू हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार अली महतू साहब, बताइएगा इस खबर से मुतालिक इसकी डिटेल्स। ये पाकिस्तान के रेलवे की तारीख का एक बहुत बड़ा मंसूबा है और गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तान की इकॉनमी। शेख की सदारत में पाकिस्तान की वफाकी इक्तसादी राब्ता कमेटी ने इस मंसूबे की क्लियरेंस दे दी है और मंजूरी दे दी है कि पिछले कई साल से एक्मेक के अप्रूवल के बगैर जो था वो पड़ा हुआ था और इससे जो टोटल लागत अब बताई जा रही है वो 6 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गई। इसकी जो इनिशियल लागत थी वो 9 अरब 26 करोड़ डॉलर थी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.